वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंस्पिरेशन टॉक्स। आज की इस एपिसोड में मेरे साथ विकार हबीब है, हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड सोशल वर्कर। सो बिफोर एनी डिले, लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम विकार, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Walaikum Assalam. Alhamdulillah, I'm fine. Thank you so much. First of all, thank you so much for joining Inspiration Talks, Viqar. I really appreciate. So, सबसे पहले I would like to know about you. Can you give us a short intro about yourself? Sure. I was a typical housewife, but around about 15 years ago, I started working. I worked 2 years in a consultancy firm, and then I joined Beacon House as a senior mistress. As a career advisor, I got promoted a year later to a senior mistress, and I worked in that position for around about 13 years. After which, I've just opened up my own school with partners. It's been 2 years, the Thinking School. Besides that, I'm a motivational speaker. I write a lot on women's group. And I also have started a Rishta service, and I also do a lot of charity, which is money given to me by students and my Facebook followers around the globe. Okay, great. So, as you do so many things all together, so how do you manage time in all this? I manage time. My kids are abroad. So my husband's been married since a year. So I mean, naturally, we're together 4 out of 7 days. So, but जो 3 दिन नहीं होती हो वो फिर after office, this is all I do. And रात तक I sleep like at 4 a.m. तो मैं वो continuously फिर counseling करती हूँ, talking to people who need help. So it's just been it's been a part of me for I don't know how many years now. Okay, great to know about it. So, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बचपन को. So, when you were छोटी, what did you want to be? A housewife. Okay, you wanted to be a housewife. Yeah, I don't think I was a career type at all. Bilkul nahi. Okay, so what was your favorite subject when you were in school? I think science. I've always enjoyed science. Okay, ठीक है. तो कोई favorite cartoons या game? Oh, definitely Tom and Jerry. Tom and Jerry, Woody Woodpecker, and Popeye. Tom and Jerry are one of the most favorite cartoons of everybody. चले ठीक है. Yeah. So Viqar, जैसे कि you do so many things. So I have a question. How to deal with a child who asks for things constantly? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है. फर्क हमारे में है कि us people we get angry. हमें शर्म आती है. हम बाहर जाते हैं, we see kids in the markets and we get embarrassed. जबकि बाहर जो it's not like that. They let the kids cry. Tantrum throw किया करने दो, बच्चा कितनी देर तक रोएगा, फिर उसको निकाल दो. I'm of that view as well. I'm completely against कि आप बच्चे को मारो. बिल्कुल मैं completely against that. मुझे लगता है उससे बच्चा आपका और वायलेंट होगा और टैंट्रम्स थ्रो करेगा. आप वेट करें, लेट हिम फिनिश द टैंट्रम एंड देन बस आप उसको उस जगह से ले जाए. यू हैव टू बी पेशेंट. आजकल की जनरेशन वैसे भी थोड़ी बहुत डिफरेंट है. बस द गोल इज कि जस्ट बी पेशेंट एंड लेट इट ऐसा ऐसा वो खुद ही चुप हो जाएगा और फिर आप उस जगह से निकल जाए. या अगर घर पे भी है, जस्ट लेट हिम क्राई हिज हार्ट आउट. इट्स ओके, इवेंचुअली चुप हो जाएगा. लेकिन ये नहीं कि आप मारेंगे या उसको और वो इंसाइट करेंगे कि वो और गुस्सा करे और वो टैंट्रम थ्रो करे. नो, एब्सोल्युटली नो. ओके, ठीक है, completely agree with you. तो अगला सवाल इसी से related, how to make kids independent? Because usually many kids are dependent on the parents. So how to make them independent in terms of studies? In terms of studies, yes. अच्छा, so my basically method was कि I never मुझे याद ही नहीं कि मैंने बच्चों से कभी कहा हो कि टेस्ट कौन सा है, क्या है, क्यों नहीं पढ़ रहे. I didn't even know ये करना होता है until I joined an educational system and I realized 2-3 years down the line all my colleagues used to put so much effort in. So I think because of that my kids learned. They knew their father was a hard-working person. अम्मा को भी देखते थे and I think मेरा bond बच्चों से इतना strong था besides academics. I think they wanted to just do well. तो वो खुद ही मतलब मुझे कभी नहीं आता. So I think अगर पेरेंट्स बच्चों को उतना फोर्स ना करे हर वक्त के पढ़ो, फिर वो नफरत भी नहीं करेंगे पढ़ाई से. और मे बी अगर वो उसको अच्छा बेटा आप 1 घंटा पढ़ ले, देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. हमारा मसला ये है कि हम लोग बच्चों से कहते हैं 4-5 घंटे पढ़े, 3 घंटे से कम पढ़ा तो हम कहते हैं कि ये क्या तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, सारा दिन नहीं पढ़ते. सो आई थिंक इफ यू जस्ट टेल देम बेटा आप खुद पढ़ो, मैं कुछ नहीं चेक करूंगी, बस 1 घंटा पढ़ लिया करो. I think so many problems would be solved for parents in terms of wanting their kids to study or getting good grades. Yeah, that's right. So usually the first thing is the child doesn't want to study, even if the parents say कि आप जाके पढ़ो 1 hour के लिए पढ़ो, उसके बाद you can do whatever. The child won't go. So how to make the child कि आप जाके पढ़ो?
encourage कैसे किया जाए? मैं बताऊं, उसमें भी आई थिंक, देखिए मेरे ख्याल में कोई इतना बच्चा नहीं है, हाँ बहुत छोटे बच्चे शायद जिद करें, लेकिन आई थिंक थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, इससे 8-9 ईयर्स के, आप उनको इंसेंटिव दे दो यार। आजकल एक्सबॉक्स है, इतनी चीजें, आपका बेटा ठीक है 1 घंटा पढ़ो, देन यू कैन प्ले एक्सबॉक्स फॉर 3 hours और यू कैन प्ले एक्सबॉक्स फॉर 2 hours। मतलब आई डोंट नो, आई मीन सम पेरेंट्स ऑफ कोर्स वुडंट इवन अलाउ दैट, लेकिन चलिए आप अपना इंसेंटिव देख लेना कि अच्छा बच्चे विल गो टू द पार्क, देन हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे, यू नो, यू हैव टू गिव देम इंसेंटिव्स। ये शुरू की बात है, वंस आपकी वो एक रूटीन बन जाए, फिर जो बच्चे हैं, यू नो, दे जस्ट बी इंडिपेंडेंट। That's right, but there are still kids who want, you know, after giving them incentives, they will be still like, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम गेम भी नहीं खेलेंगे, गार्डन भी नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी वो पढ़ेंगे नहीं। तो how to encourage in such cases? मैं आपको आई थिंक वही कहूंगी कि आई थिंक के यू नो सम किड्स माइट बी हैविंग बैड डेज, दे माइट डू इट फॉर अ वीक, लेकिन इवेंचुअली मैं आपको बताऊं कि यू नो मेरे से तो तकरीबन कितना 2-3 हजार बच्चा ए लेवल्स का जा चुका है। इवेंचुअली जो है बच्चे व्हेन दे रियलाइज यू नो कि नहीं, यू नो अब वी हैव टू स्टडी, इट्स अब यू नो सब कुछ खत्म हो गया, आई एम टॉकिंग फॉर ओल्डर स्टूडेंट्स, देन उनको हिट करते हैं, दे डू स्टार्ट स्टडीइंग, दे बिकम सीरियस। जहां तक छोटे लेवल की बात है, आई एम रनिंग अ स्कूल राइट नाउ एंड यू नो वी हैव 350+ स्टूडेंट्स, एंड उसमें ये कंप्लेंट्स आती है मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। इस तरह के बच्चे हो गए, 350 में से शायद 15 बच्चा होगा जो बिल्कुल नहीं पढ़ता और अम्मा अब्बा बहुत वो करते हैं, लेकिन यू नो देन दे टेल मी, और मैं फिर उनकी काउंसलिंग करती हूँ, एंड यू नो जस्ट वो आई थिंक दे नीड टू गेट अ मेंटर फॉर दैट। तो जैसे जब मैं बच्चों से कहूँ कि मेरा बच्चा, यू नो यू माय फेवरेट, दिस इज व्हाट आई डू, आई गो यू माय फेवरेट स्टूडेंट, आप मेहनत करो, एंड आई से इट फ्रॉम द हार्ट। ये नहीं, यू नो आई रियली लाइक दिस सॉर्ट ऑफ किड्स बिकॉज़ दे चैलेंजिंग यू नो। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है इन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं सारी बातें वो हर वक्त आपके सर पे होते हैं, ठीक है। कोई बच्चों को एक मेंटर मिल जाए, व्हिच आई फील इज so important, especially in today's generation, I think it can make such a big difference in your child's life, बहुत ज्यादा। That's right, completely agree with you. So how to make the routine of the kids? बचपन से ही like perfect routine of making them take time पे पढ़ाई कराना और खाना वगैरह, sleeping routine. To be honest, ये बहुत ही वो क्वेश्चन है, I don't think ऐसा होता है, बहुत कम फैमिलीज में इट्स परफेक्ट। मैं अपना बता दूंगी अपनी, हाँ, I was only strict about one thing, I was the most coolest mom on planet Earth, I was only strict about one thing, that was bedtime, क्योंकि मैं सारी रात गिनती थी, अच्छा जितने बजे सोया है घंटे, मुझे याद है मैं रातों को उठ के गिनती थी, अच्छा इतना टाइम हो गया, अभी इतने घंटे। I was very thinking कि my kids should get, you know, 12 hours, 12 नहीं लेकिन 10 hours, 8 o'clock मैं उनको सुला देती थी, so they'd wake up at 7, so it was 11 hours sleep. खाना शाना कोशिश करो यार, अब वो जमाना नहीं रहा मैं रो, मैं बच्चों को मारू कि तुम रूटीन, आई एम सॉरी लेकिन टाइम्स हैव चेंज्ड, सो आई एक्सेप्टेड दैट, and I think that's why मेरे बच्चे alhamdulillah, you know, we have such a strong bond because I accepted it, you know, so we're very strong bond, we share everything. लेकिन मैं अगर उनसे कहती, अभी मैं चीखती हूँ, अल्लाह यार, you know, they're always laughing, all you care about is family dinners, family ये, तो ठीक है अगर you know हम साथ बैठ जाए, I love it, you know, खाना if they're all home ये वो, लेकिन otherwise कि मैं हर वक्त रो के हाय अल्लाह मेरा बच्चा अभी नहीं उठा, खाना नहीं, times have changed, you have to accept it. Okay, so in सबके बाद I would like to know, what do you think is faith and why is it important? Okay, so this is one of my favorite questions. Faith, I think, is the most important thing in the world. Whether you're Muslim, whether you're Christian, whatever you know faith you belong to, it doesn't matter. It's how strong you know you believe in God. मुझे लगता है for me, I mean everyone you know might differ, लेकिन मेरे लिए तो बहुत जरूरी है faith, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपका तवक्कुल स्ट्रॉन्ग है, फिर जिंदगी में जितनी मर्जी मुश्किल आ जाएगी, you know you have got to look up to, you know कि अल्लाह ने आजमाइश डाली, अगर अल्लाह ने डाली अल्लाह उस चीज से निकालेगा भी. So for me, I think my life, you know, from a very young age has this based on this, you know, and that's why alhamdulillah I'm a very you know satisfied person कि जो होता है अल्लाह देख रहा होता है, you know. हमारे घर एक दफा एक चोरी भी हुई थी, you know, मुझे याद है मैं स्कूल गई तो सबने कहा अल्लाह आप स्कूल आ गए, अभी तो चोरी हुई है तो आप अपसेट भी नहीं है, तो मैंने कहा यार अल्लाह देख रहा था, हो गई तो you know I mean हो गई तो मैं क्या, so my whole life you know is based on that कि you know Allah was looking, if Allah could have you know think he did तो नहीं हुआ तो खैर है, तो फिर क्या हुआ, you know it doesn't matter, अल्लाह मेरे को छोड़ दे देगा. So I think अगर आप ये positive mindset रखें, your life will be so much easier and problemless. We all have our ups and downs, no life is perfect. So okay, so moving on to the next question, as you said, okay, we should never give up even in the hardships. So what happens usually is people do give up when they face hardships. In fact, they will try to find shortcuts to be able to be successful. So what do you think all about this?
I get asked this a lot of question. बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हाँ हाँ आपकी लाइफ में कभी हार्डशिप नहीं आए, इसलिए I go don't say that. I go you know you don't write about everything, you know. I go hardships किसकी लाइफ में नहीं आता, you know. Of course हर किसी में आता है, वरना अल्लाह में if there were no hardships in my life I'd be upset because God tests only those He loves. It means I would have felt कि God doesn't love me, कि my life is 100% smooth. It's not like that. Hardship सबकी लाइफ में आती है. I think उसमें यही है कि you know आप अपना तवक्कल इतना स्ट्रॉन्ग रखें and आपका ये बिलीव होना चाहिए कि अगर अभी आजमाइश आई है तो you know आगे जाके जरूर बेहतरी होगी. You know I think it's just that belief कि God is watching over you. एंड वो यू नो मेरा हमेशा एक वो है कि अल्लाह 70 माओ से ज्यादा आपको प्यार करता है. आई एम अ मदर सो आई नो, मतलब मैं तो हल्का सी भी सोचूं कि मेरे किसी बच्चे को कुछ हो जाए, यू नो द फीलिंग्स ऑफ दैट. तो इमेजिन समवन लविंग योर किड्स मोर देन 7 times, उससे ज्यादा फिर हम क्या, यू नो व्हाट कैन वी से. So usually when people do istikhara, they will be like, they will try to find out what they see in the dreams. So do you think is istikhara based on dreams? And अगर इस्तिखारा किया जाए तो क्या 3 times करना चाहिए या more than 3 times if one is unable to find out what is right or wrong for him or her? अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैंने जिंदगी में कभी इस्तिखारा नहीं किया क्योंकि मैं शायद बस हर चीज बस एक होता है इस्तिखारा शायद और एक होता है तवक्कल. I've just been के I just take things that they are you know बस अल्लाह से रात को तहज्जुद में दुआ मांग ली एंड यू नो कि बस अल्लाह इसमें बेहतर करे. इस्तिखारा जरूर करना चाहिए if you're convinced about something. You don't see dreams. आपको एक इशारा भी नहीं मिलता. It's just your heart gets inclined towards that thing. आप 2-3 दिन करें, आप हफ्ता करें, बस आपका दिल, कुछ लोग कहते हैं ना कि ख्वाब, मैंने इस पे बहुत पढ़ा है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ख्वाब नहीं आता. It's just that your heart gets inclined towards whatever direction वो होना चाहिए. You know, but I think you know इस्तिखारा आप हर चीज के लिए ना करें. You know there's some things which I feel कि आप बस अल्लाह को ट्रस्ट करें and you know let it be. लेकिन of course जिस तरह शादियों में बहुत लोग करते हैं you know इस्तिखारास and there are other things, job decision, you know अगर आप कर सकते हैं आप जरूर करें. I mean सारी बात है, ये कोई you know हमारे इस्लाम में है. So of course if you want to do it you should do it. लेकिन don't expect कि आपको एक ड्रीम में साफ नजर आएगा. It's an inclination जो आपका दिल उस चीज की तरफ जाता है. Okay, ठीक है. So let's move towards, let's imagine and inspire. So if you get infinite amount of money, if you win a lottery ticket, for example, infinite amount of money, so how will you spend that infinite amount of money? हाय क्या सवाल पूछ लिया. मेरा एक ड्रीम है, मेरा ऑनेस्टली वाकई में एक ड्रीम है. आई एम नॉट गोइंग टू शो ऑफ ये. आई डेफिनेटली कीप सम, मैं अपने लिए भी रखूंगी. यू नो आई प्रॉब्ली यू नो ऑफ कोर्स डू अ लॉट ऑफ स्टफ ये वो. लेकिन देयर इज वन ड्रीम ऑफ माइंड जो कि आई ऑनेस्टली वांट टू सी इट, कि मैं बिकॉज लॉट्स ऑफ वुमेन मैसेज मी हू आर इन अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, तो मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि आई वांट टू ओपन अ शेल्टर फॉर दीज वुमेन जो कि आके वहां पे यू नो हु गेट किक्ड आउट ऑफ देयर हाउसेस, you know आके रहे, कोई काम करे. So that is one of my biggest dreams which I hope to fulfill within the next 5 to 10 years. Inshallah, all the best for it. अगर आपको मौका मिले विकार कहीं रहने का for 1 whole year, so कौन सी कंट्री में आप रहना पसंद करेंगी? Pakistan. Okay, Pakistan. My kids, everyone thinks I'm crazy, but I'm just too Pakistani. I love Pakistan, and to be honest, I love the Middle East. I've lived in Kuwait for 18 years. I loved it. Like in America, England, no, it's a big no for me. I love Pakistan. I need to see my people everywhere. Okay, that's great to know. अच्छा, if you get a time machine, so past में जाना पसंद करेंगे या future में? ना पास्ट में सच्ची बात है, ना फ्यूचर में. बस जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र. I don't think I'd want to go in the past. पास्ट बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर फ्यूचर का I never want to know. वो बस ठीक है. तो अल्लाह जो चल रहा है अल्लाह का शुक्र है, यू नो स्मूथ जा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह. ओके ठीक है. तो क्या आपको लैंग्वेजेस लर्न करने का कोई शौक है? लैंग्वेजेस बहुत क्रेज है, सच्ची बात है. अरबिक थोड़ी सी आती थी, जाहिर बात है कुवैत में थी, वो भी भूल गई. चाइनीज सीखने का बहुत शौक था. फ्रेंच भी बहुत उसमें थी, ओ लेवल्स में ली थी, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, वो भी भूल गई. या मतलब आई थिंक एनीवन हू नोस लैंग्वेजेस, इट्स वाओ. आई लव लैंग्वेजेस, यू नो लर्निंग देम एंड ऑल दैट. ओके, दैट्स ग्रेट. तो डज एनीवन इंस्पायर्स यू? Inspire me यार. कोई इंस्पायरेशन? आपको सच्ची बात बताओ, it's a typical line, लेकिन I don't think it's a typical line because lots of people I've shared this with, कि मैं, you know, when I get stuck in a situation, I always think what Prophet Muhammad peace be upon him would have done in that situation. एक छोटा सा वाकया था कि हम लोग सारे टीचर्स बैठे हुए थे, किसी ने पूछा कि मैम आप बताएं कि जो
ये बकरे का जो हम ईद पे गोश्त होता है हम किसी क्रिश्चियन को दे दे अगर वो आ जाए, पहले मैंने कहा नहीं 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 इट्स नॉट। फिर ऑल ऑफ सडन मैं सोचा कि अच्छा इट वाज प्रॉफिट मोहम्मद एंड समवन वुड कम टू हिज हाउस रिंग द बेल, तो वो क्या ना देते, सो आई ऑलवेज थिंक कि वो क्या करते। आई थिंक उसकी वजह से अगर आप इस तरह सोचे कि आप एक बहुत हम्बल और बहुत काइंड हार्टेड, आई थिंक जो मेरे अंदर एम्पैथी इतनी ज्यादा इट इज बिकॉज कि मैंने हमेशा रोल मॉडल उनको समझा है। एंड ऑनेस्टली इन एनी सिचुएशन आई हैव बीन स्टक इन, आई हैव ऑलवेज थॉट कि वो क्या करते, सो आई थिंक लाइफ इतनी इजी हो जाती है उसके बाद। वो तो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जब आपको गुस्सा आता है तो व्हाट डू यू डू? गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा आता ही नहीं है? गुस्सा कभी नहीं आया। 49 years की होगी, गुस्सा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी नहीं आया। अगर कभी आ जाए आई गेट वेरी इमोशनल, तो वो गुस्सा नहीं होता, आई गेट वेरी वेरी इमोशनल देन, इसलिए मैं गुस्सा कर ही नहीं सकती कि वो आई लुक लाइक अ फूल देन, वो मैं इतनी इमोशनल हो जाती तो फायदा ही नहीं। ओके ठीक है। सो हाउ डू यू रिलीव स्ट्रेस जब स्ट्रेस होता है? I think that's the problem. वो मैं अंदर ही अंदर I think that's the thing. That's why I think I've developed high BP because वो मैं अंदर ही अंदर रखती हूँ। तो my stress is related to the problems I listen to. There's so much sadness in the world. So I think that's my stress. Financial issues लोगों के, abusive marriages, बच्चे who are not happy with their parents, marital affairs, financial, ये COVID में कितनी businesses ठप हुई. So that gives me a lot of stress, and then I wake up in the middle. मुझे इतनी आदत हो गई है, आंख लग जाए मेरी, I have to wake up in the middle of the night. वो Facebook के थ्रू स्क्रॉल करती हूँ मैसेजेस, कोई अर्जेंट मैसेज तो नहीं है। So सारी बात है, जब नींद नहीं पूरी होगी आप इस तरह के मैसेजेस पढ़ेंगे, it's going to take, give you stress and BP. So जैसे कि you mentioned कि you work all the time and you don't usually sleep much. So how do you manage everything with no sleep? Because usually people with no sleep, they will be more cranky and they won't be able to concentrate and focus. So how do you manage everything? Acha, because I think I've never been one of those people who really needed sleep. So it really doesn't matter to me. I am one of those people के शायद इतनी गहरी नींद और कोई कि फोन करे या कोई नॉक करे I'll be fresh. मतलब मैं उनमें से नहीं हूँ कि I know मेरी एक कजन है जो कहती है सब कुछ कर लो लेकिन अगर मैं सो रही हूँ मुझे बस उठाना नहीं. So I'm not one of those people. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नींद मिल जाए एक्स्ट्रा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो तो it just doesn't matter. For me 2-3 hours are more than enough. Any advice how to stay happy and stress free? बिल्कुल है, अपने लिए जियो. सबकी जिंदगी में स्ट्रेस है, इससे कोई अगर आप स्ट्रेसफुल है, अगर आप अपसेट है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ आपको फर्क पड़ा. इसलिए अपने लिए जीना सीखे, खुश रहे, जो चीजें आपको खुश करती है वो करे. जिंदगी बहुत छोटी है, इसको एंजॉय करे, जियो और जीने दो बस. Bilkul, I completely agree with this point. It was great talking with you, Viqar. I really enjoyed talking with you. I hope you also enjoyed talking with me. So here is a small gesture from me to you. Thank you so much, and thank you so much for the mug. I'll treasure it. Thank you so much. You are most welcome. Anything which you would like to say in the end? No, thank you so much. It's been great, being a part of this program, and I hope that whoever's listening, अगर कोई एक बंदा भी इससे गुफ्तगू से थोड़ा सा फायदा उठा ले तो मेरा काम हो गया. Thank you so much. बिल्कुल. Okay, ठीक है.